السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ہی سب کی نگاہوں کا مرکز بن جانے والی اہم ترین سیاسی شخصیت محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ کافی عرصہ سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری سیاست اور میڈیا کا محور و مرکز آپ کا یہ بھائی ہے۔ پہلی بات یہ کہ مولانا میں نے کافی عرصے سے نہیں کہا، میں نے کچھ دنوں سے کہا ہے۔ کافی عرصہ سے کہا ہے؟ آپ کو کوئی تکلیف؟ یہ آپ کا کیلنڈر صرف ایک مہینے کا۔ کافی دنوں سے آپ اہم ترین شخصیت تھے نہیں۔ آپ کی نظر میں اس سے پہلے اہم ترین شخصیت پھنجا سری پائے والا تھا؟ کو ہوش کے ناخن لو میرا بھائی، ایک بات یاد رکھو، پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ بھائی فضل الرحمان رہا ہے۔ کیا بات کچھ دن پہلے تو ہم سنتے تھے کہ پاکستانی سیاست کی اور میڈیا کی ڈارلنگ شیخ رشید احمد ہے، اب آپ بن گئے۔ یہ بے شرم الفاظ آپ اسی کے بارے میں کہا کریں جس کے بارے میں پہلے کہتے ہیں۔ ہم شرم حیا والے لوگ ہیں، ہم محور و مرکز استعمال کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ صرف یہ محور و مرکز کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ آپ ساتھ تعارف میں یہ بھی کہا کریں کہ سچ کے علم بردار، وطن کی محبت سے سرشار، کیا کہنے اور حریت کے قافلوں کا سالار۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے دانت دکھتے ہیں یا زبان پہ کوئی پنسی نکلی ہوئی ہے؟ مولانا آپ نے خود ہی اپنے بارے میں سب کچھ کہہ دیا، میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ جو میں نے کہا ہے یہ آپ کے منہ سے نکلنا چاہیے، واہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکستان میں ان القاب کا کوئی اور حقدار نہیں ماں سوائے فضل الرحمان سے۔ واہ جی واہ۔ اچھا مولانا محترم یہ فرمائیے کہ جن قافلوں کے آپ سالار ہیں یہ کب مارچ کرنے والے ہیں اسلام آباد کی طرف؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کیا آج کل صحافت چھوڑ کے دلہنوں کے سرخ جوڑے کرائے پہ دیتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے بھائی، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ انشاءاللہ انگریزی مہینے کی 26 مارچ کو، دیسی مہینے کی 13 چیتر کو اور عربی مہینے کی 12 شعبان کو نکلے گا۔ واہ، جنید میاں، یقین کرو کہ پاکستان کے ہر گھر نے اپنے کیلنڈر کے مارچ والی تاریخ کے اوپر ہمارا کالی اور سفید لائنوں والا جھنڈا بنا لیا۔ مولانا اس کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی کا شو ہوگا، صرف جے یو آئی کا، تو نون لیگ پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لانگ مارچ میں ساری کی ساری الحاق جماعتیں نکلے گی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرف جھنڈا صرف جے یو آئی کا ہی نظر آتا۔ مولانا یہ تو قرین انصاف نہیں کہ صرف ایک جماعت کا پرچم ہوگا۔ مگر یہ حقیقت تو ہے نا۔ اور ویسے بھی جنید، آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہے وہ جے یو آئی کے جھنڈے پہ متفق ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہمارا جھنڈا بڑا معنی خیز ہے۔ یہ جو کالی لائنیں ہیں یہ موجودہ سیاہ دور کی علامت ہے، اور جو سفید لائنیں ہیں وہ آنے والے عمل کے وقت کی علامت ہے۔ واہ، اس لیے ہم اپنے پیارے وطن کو موجودہ سیاہ دور سے بھی خبردار کر رہے ہیں اور آنے والے وقت کی امید بھی دلا رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جھنڈے پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے تو وہ نکال کے پھینکو۔ اگلا سوال پھر یہ ہے مولانا کہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ آپ جیل جانے والے ہیں۔ اس آدمی کی بات کر رہے ہو جیل کی سلاخوں سے کھلا ڈلا باہر نکل جاتا ہے۔ پرویز خٹک کو کیا پتا ہو جمہوریت کی آواز کس طرح بلند کی جاتی ہے۔ بہت اچھا۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ لوگوں کی خواب خیالی ہے۔ یہ تیلی کے جسم والا شخص یہ نہیں جانتا کہ جو ہاتھ مولانا کی طرف اٹھے گا پاکستان کی عوام وہ ہاتھ توڑ دے گی، اور جو ہتھ کڑی مولانا کے ہاتھ کی طرف بڑھے گی اس کو بٹی میں ڈال کے پگھلا لے گے۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਤੇ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। यानी आप ऐसे मनहूस आदमी कि अपनी रोजी के चक्कर में आप मनहूस बातें शुरू कर। नहीं जी, मैंने तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से जी पाकिस्तान में कम से कम कोई ऐसा हाथ नहीं है वाह जी, जो फजल रहमान की तरफ उठे। हाँ ये तो है। ये पकड़ेंगे मुझे जो खुद चोर है, जो खुद 2 नंबर लोग हैं, जो खुद एहतसाब के काबिल है, जो खुद जेलों के अंदर डालने के काबिल है, ये डालेंगे मुझको। एक बात याद रखो, जी अल्लाह ताला के फजल से सारी जिंदगी साफ सुथरी गुजारी है। बिल्कुल। सारी जिंदगी घर से निकलते हुए अपने जूते साफ करके निकले। मौलाना साहब आप फिक्र न करें, मैं आपका दीवाना हूँ, मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊंगा, मुझे क्रॉस करके ही आप तक पहुंचेंगे। जो अगर मैंने आगे जाना हुआ तो मैं फिर आपकी पीठ पे खंजर मारूंगा। मेरे आगे किस लिए खड़े हो रहे हैं? अल्लाह के फजल से फजल और रहमान को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा। क्या बात है सर। और एक बात और सुन लो जुनैद सलीम, तुम्हारे इस शो में मैं आज एक न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ। आने वाला वक्त ये बता रहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से दीन का और सच का बोलबाला होने वाला। और जिस दिन हम कुर्सी पे बैठ गए, ये जो जितने भी लोग तुम्हें शोर मचाते हुए और झूठ बोलते हुए नजर आते हैं, ये सारे के सारे जेल की सुलाखों के पीछे हो गए, सिवाय परवेज खटक के। परवेज खटक साहब को क्यों एनआरओ दे रहे हैं आप? एनआरओ नहीं दे रहे, वो तुम्हें पहले बता चुका हूं कि वो जेल की सुलाखों से निकल आता है। नहीं देगा, टोकरे के नीचे मत करे। और उस टोकरे के ऊपर इंशाल्लाह आधी ईंट मैं खुद रखूंगा। आधी ईंट? मुझे पता है उस जवान से आधी ईंट भी नहीं उठाई जाए। अच्छा मौलाना मोहतरम, शेख रशीद साहब ने आपको मशवरा दिया है कि आप पिंडी को भूल जाएं, अपने कारकुनों को लाएं, इस्लामाबाद की सैर करवाएं और वापस चले जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आपका मार्च कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, क्या लाया अमल है? पहली बात तो ये है कि शेख रशीद साहब को सियासत की गुफ्तगू में बोलना ही नहीं चाहिए। वो सियासतदान नहीं है, दुकानदार है। ऐसे दुकानदार जो होते हैं हाँ। उसको मालूम होता है कि मेरा माल किस वक्त और किस जगह पे बिकने वाला है। शेख रशीद साहब भी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनका जो सियासत का मामला है वो किस जगह पे और किस वक्त बिकेगा, वो बड़ी आसानी से उसे बेच लेते हैं। तो बात जो आप कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की कि ये कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, ये तो हम लोग खुद भी नहीं जानते। शुरुआत इसकी जानते हैं कि ये पाकिस्तान के हर घर से शुरू होगा, खत्म कहाँ होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा मौलाना, हम सुनते आए थे कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, आज पता चला नहीं, हर घर से जुलूस निकलेगा। पीपल्स पार्टी वालों के घर जो है वहां से भुट्टो ही निकलेगा, मगर बाकी हर घर से जुलूस निकलेगा। वैसे मौलाना शेख रशीद साहब का मशवरा गलत नहीं है, आप अपने स्टूडेंटों को इस्लामाबाद की सैर करवाएं। वो लेडीज नक के कोके मैं सियासतदान हूं, मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूं कि कारकुनों को उधर ले जाओ और छड़ी के साथ बताओ कि ये फैसल मस्जिद है, ये रेडियो पाकिस्तान है, ये शक्कर बढ़िया है। सैर किस बात की करानी है? फजल करम से वो खुले दिल, खुली आंखें और खुले जहन से फिरता, वो पहले ही सारी सैर कर चुका है। अब तो इंशाअल्लाह ताला हमारा कारकुन इस्लामाबाद फतह करने की नीयत से वहां पहुंचा। मौलाना साहब इस्लामाबाद फतह करना है, जुलूस किसी और मुल्क च मारे वह पिछले साल के तेल में निकले हुए पकौड़े बात के मानी समझने की कोशिश करना जी जी। इस्लामाबाद फतह करने का मतलब यह है कि इक़्तिदार फतह करना। अच्छा मौलाना, मतलब ये
बताइए कि 26 मार्च तो सर पे खड़ी है, अब इतने बड़े मार्च के सारे इंतजामात, ट्रांसपोर्टेशन है, खाना पीना लाखों लोगों का, आप यहाँ बैठे हैं, इंतजामात कैसे होंगे? आपका क्या ख्याल है ये सारे इंतजामात मैं करता हूँ? आपके ज़हन में क्या है कि मैं सुबह सुबह साइकिल लेके निकलता और टेंटो वाले के पास जाता, उसके बाद मैं साइकिल पे बैठ के देगो वाले की तरफ जाता हूँ, उसके बाद मैं साइकिल मोड़ के कुलचे वाले की तरफ जाता हूँ कि भाई साहब हमें 2 लाख कीमे वाला कुलचा चाहिए। आप कैसी बात करते हो? सारे इंतजामात अल्लाह ताला के फजल करम से हो रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि जिस तरह भरपूर इंतजामात से आप निकलेंगे, कामयाबी हमारा इंशाअल्लाह मुकद्दर होगी। मौलाना साहब कीमे वाले कुलचे नहीं, नान होते हैं। कुलचा हो या नान हो, तुमने हाथ लगाया तो तुम्हारी इधर कंडी पे गोली मारूंगा। वैसे मौलाना मैं माफी चाहता हूँ, जो आपका पिछला एहतजाज था उसका हजूम बड़ा कम था। मेरा ख्याल है तुम्हें कमजोरी की वजह से कम लगाओ। मौलाना साहब ये पीटीआई का है, इसीलिए इसकी शक्ल भी मुराद सईद से मिलती है। वो तो एक जगह पे बैठने वाली झूल नहीं है, तुम कैसे एक जगह पे बैठे हो? मौलाना मैं पीटीआई का नहीं, मैं गुजरांवाला का हूँ। ये किस तरह के दानिशवर बिठाए हुए जिनको यही नहीं पता कि कौन सी सियासी पार्टी है और कौन सा शहर है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अब तो बल्कि यार बहुत आगे बात चली गई। अब तो अक्सर हुकूमतें जो वो हैं वही कह रही हैं कि करेंसी नोट ही खत्म कर देने चाहिए या कम से कम कर देने चाहिए, ताकि जितना भी लेन देन हो वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए हो, ताकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाया जा सके। यार जुनैद को 3 हफ्ते हो गए हैं, एक 100 का नोट मेरे बटुए में है, वो इतना मैला हो गया हुआ है, इतना मैला हो गया हुआ है कि किसी को देता हूँ दुकानदार को तो वो कहता है भाई जी दा सौदा लेना है कि इन्हों ड्राई क्लीन कराना है। नहीं, मैं सोच रहा था वैसे कि नोट को ऐसा होना चाहिए जो तो ही ले बंदा है। प्लास्टिक करेंसी नोट पूरी दुनिया में अब आते जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। जो कागज के करेंसी नोट है इनकी जगह ले रहे हैं प्लास्टिक के करेंसी नोट। अच्छा जी, ये प्लास्टिक करेंसी कहा जाता है ना, ये एक हमारे यहाँ कंफ्यूजन है। जब हम कहते हैं ना प्लास्टिक करेंसी, उससे 2 चीजें मुराद होती हैं। एक तो जब प्लास्टिक करेंसी कहा जाता है तो इसका मतलब है क्रेडिट कार्ड, वो चाहे डेबिट हो क्रेडिट हो कोई भी कैश प्लास्टिक का, हाँ, प्लास्टिक कार्ड वो प्लास्टिक का बना होता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक करेंसी। लेकिन प्लास्टिक करेंसी से मुराद ये प्लास्टिक करेंसी नोट भी होते हैं। तो देखो ये इसमें अब मुझे याद आ गया, वाकई मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड का नोट मैंने देखा हुआ। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इब्तदाई मुल्कों में थे गालिबन, मेरा ख्याल है 1988 के लगभग जो है ऑस्ट्रेलिया ने आगाज किया था सबसे पहले, और उसके बाद फिर जाहिर है उसके हमसाया न्यूजीलैंड में। अब तो इंग्लैंड में भी जो है वो मेरा ख्याल कई नोट जो हैं वो प्लास्टिक की शक्ल में आ गए। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ होते हैं, वो एग्जैक्टली वाटरप्रूफ नहीं होते, लेकिन बहरहाल कागज की निस्बत वो बहरहाल वाटरप्रूफ होते हैं। अगर तुम्हारे पास वो 100 के नोट की जगह कोई 5000 का नोट है तो वो मुझे दे दो, मैं चंद दिन बाद तुम्हें उसको ठीक करके वापस कर दूंगा। अगर 5000 सौदा कर दो तो सिर्फ 5000 ही कारीगर हो। मैंने काम 5000 पे सीखा हुआ है। चलो फिर मैं 100 वाला कारीगर लब ले 100 वाला इधर दे तो ये पापड़ खा लेगा उसके। 100 दे पापड़ दे कान च पा लेंगे। भाजनैद मैं ये सोच रहा था कि यार प्लास्टिक के नोटों की भी काफी प्रॉब्लम होती होंगी। हमारे मुल्क में तो जब भरपूर सर्दियां आती हैं, बंदा अगली जेब च प्लास्टिक नोट पा के ते मच ते बह जावे आग से बाद चो पता लगे भाई जी ठंड ते दूर हो गई है मगर करेंसी सारी चोड़ मोड़ हो गई है। हर चीज का तुम मनफी पहलू देखना। उसे आसानी देखो यार, प्लास्टिक करेंसी नोट पाकिस्तान में कई दफा ये तजवीज आई है। अब तो बल्कि यार बहुत आगे बात चली गई। अब तो अक्सर हुकूमतें जो वो हैं वही कह रही हैं कि करेंसी नोट ही खत्म कर देने चाहिए या कम से कम कर देने चाहिए, ताकि जितना भी लेन देन हो वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए हो, ताकि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाया जा सके। सर कोई बंदा नहर डूब जाएगा ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ पैसे तो निकल आएंगे ना जे प्लास्टिक के नोट होंगे। यानी बंदा डूब गया उसकी फिक्र नहीं है, इस पर नोटों की फिक्र है। आजकल एक लतीफा भी मशहूर है ना बड़ा, कि एक बंदा मर गया ना उसके मत्थे पे गोली बज गई बेचारे की। अच्छा। तो उसका एक मासूम सा रिश्तेदार आके कहता
हाय हाय मारते गया, मगर शुक्र है आंख बच गई है। सर हमारे यहाँ जाली नोट इतने बनते हैं कि प्लास्टिक की करेंसी मुश्किल हो जाए। हालांकि ये सुनकर तुम्हें हैरत होगी कि 2010 में पाकिस्तान के जो करेंसी नोट हैं ये अपने सेफ्टी फीचर्स के एतबार से, यानी उनकी नकल बनाना मुश्किल है, वो दुनिया की टॉप करेंसीज में शामिल होती थी यानी 2010 में। लेकिन दूसरी तरफ जाली करेंसी के हवाले से भी पाकिस्तान दुनिया के टॉप मुल्कों में आता है। 100 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के नोट जो है वो हर साल नए जेरे गर्दिश आ जाते हैं। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी करेंसी अक्सर तब्दील होती रही है। कभी कोई डिजाइन, कभी कोई डिजाइन, कभी कोई डिजाइन, कभी कोई डिजाइन। तुम्हें पता है कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद 1-1.5 साल तक पाकिस्तान की अपनी करेंसी नहीं थी। तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की करेंसी थी ना, और सिक्के भी और नोट भी, दोनों पे पाकिस्तान अपनी मोहर लगा के काम चलाता रहा है। ये तो 1948 के अवाखिर में पहली बार 1 रुपए का करेंसी नोट जारी किया गया था जिसपे चांद तारा बना हुआ था। फिर 5 साल बाद यानी 1953 में जाके 5, 10 और 100 रुपए के करेंसी नोट शाया किए गए। उससे पहले सिर्फ 1 रुपया, 1 रुपए का नोट चलता। क्या दौर होगा ईमान से, कहने लाख रुपये मांगे दोनों 1 रुपया काटना पड़ा। फिर 1965 में जाके 500 का नोट शाया किया गया था। अच्छा। और अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा फर्क हो गया 500 और 1000 के, सिर्फ 1 साल के वक्फे के बाद एक यानी 1966 में 1000 रुपए का नोट भी शाया किया गया था। एक दिलचस्प बात बताओ, 1957 में पहली बार हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जब वजीर आजम थे तो उस वक्त कायदे आजम की तस्वीर नोट पे शाया की गई। एक कायदे आजम की तस्वीर नोट पे शाया की गई और दूसरा नोट पे पहली बार उर्दू के साथ बंगाली में भी इबारत तहरीर की गई, क्योंकि हुसैन शहीद सोहरवर्दी मरहूम जो थे उनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, बंगाल से था। अच्छा, 1966 में जब 1000 रुपए का नोट जारी किया गया था, उस वक्त स्टेट बैंक ने यह ऐलान किया था कि अवाम में जिसके पास भी इंडियन करेंसी मौजूद है वो यानी डेडलाइन दी थी कि वो पाकिस्तानी करेंसी से तब्दील करवा वो जाया हो जाएगी। तो एक खातून जिसके पास इंडियन करेंसी में 1,70,000 रुपए महफूज थे, उस वक्त 1,70,000 कितनी बड़ी रकम थी, उसने ये कहकर तब्दील करवाने से इनकार कर दिया था कि मैं पाकिस्तान की करेंसी को हिंदुस्तान की करेंसी से तब्दील होता नहीं देख सकती, और उसने हिंदुस्तान की करेंसी को जला दिया था। हाय हाय, देखो जरा आजादी के शुक्र करने का कैसा अंदाज है। सर ये नई करेंसी नोट बनाने पे भी लागत आती होगी, तो ये लागत कितनी होती होगी? अंदाजा लगा लो कि एक जो 10 रुपए का नोट है ना, 10 रुपए का नोट जो है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चलता है सारे नोटों में से। जाहिर है, तो अब तो सबसे छोटा नोट ही 10 रुपए का हो गया, तो उसकी जो लागत है वो 3 रुपए है, और 3 रुपए लागत आती है, उस पर 10 रुपए का अवाम को दिया जाता है। जाहिर है कि वो लागत के हिसाब से तो नहीं दिया जाता। अच्छा, पाकिस्तान की करेंसी के बारे में एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट ये है, पाकिस्तान की तख्लीक के 6 साल बाद तक जो पाकिस्तान के करेंसी नोट थे ये बरतानिया से छप के आते थे। 2 बरतानवी कंपनियां थी जो ये काम करती थी। फिर उसके बाद एक बरतानवी कंपनी ने कराची में आके अपना प्रेस लगाया था, लेकिन उस वक्त तक फिर वो छापते रहे जब तक के स्टेट बैंक के हवाले से फाल नहीं हुआ था। और सिक्के पाकिस्तान मिंट में बनते हैं। हाँ, मिंट को मिंट में बन जाते हैं। और सर मिंट में नहीं बनते, पाकिस्तान मिंट उस अदारे का नाम है। ये जीटी रोड के ऊपर है लाहौर में, उधर बनते हैं सिक्के, और भी कई बनते होंगे, हमने तो इधर ही देखा बनते हुए। यार, अपने दोस्त जवाद वसीम साहब जो मारूफ अदाकार है, उन्होंने सिर्फ इस चक्कर में पाकिस्तान मिंट के करीब घर ले लिया था कि कोई 2-4 सिक्के रोजाना रिड़ रुड़ के उनके घर आ जाया करेंगे। यार उधर को लताले सिक्के बांधे जेड़े जवाब साहब दे घर पहुंच जाने ने। ही इज वेरी नोबल पर्सन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताने ये लगा था कि दुनिया भर में जो कागज के करेंसी नोट है इनका इस्तेमाल तेजी से कम हो रहा है, और हम उन बदकिस्मत मुल्कों में से हैं जहां पे कागज के करेंसी नोटों का इस्तेमाल हर गुजरते साल के साथ बढ़ता चला जाता है। देखो यानी दुनिया में इस वक्त जो है ना, पिछले 10 वर्षों के दौरान 26% कागज के करेंसी नोट कम हो गए, और कहा यह जा रहा है कि गालबन 2050 तक जो है वो 70% इनका इस्तेमाल कम हो जाएगा, यानी सिर्फ जो है 30% रह जाएगा। लेकिन हम बढ़ाते चले जा रहे हैं और जाली नोट भी छापते चले जा रहे हैं।
हाँ जी और जेड़े 4 बंदे ने को बेचारे ने ATM या डेबिट कार्ड लए ने लोग ये सोच रहे ने कि किस तरह 2 नंबर तरीके नाल कार्ड चो पैसे कढाए जाए। सर जी मैंने आज तक ये नहीं समझ आई कि बकरे दा चरखा क्यों नहीं बनता? नहीं सब बताएं सॉरी और सर जी ये गल नहीं, मैं कह रहे हैं कि नोट खत्म करने नाल करप्शन किवें घट सकदी है? बड़ी सीधी सी बात है। देखें, रिश्वत, बदुनमानी, जो करप्ट मनी है, जब वो कागज की शक्ल में, नोटों की शक्ल में किसी को देंगे, लेन देन करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपने कोई 2 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा या बेचा है तो वो आप सिर्फ जो है वो बैंक के जरिए कारोबार कर सके। अगर नकद आएंगे पैसे, अगर देखे ना, अगला मुकर भी सकता है ना तो मैंने तो लिए ही नहीं। और अगर आप कार्ड के थ्रू या बैंक के थ्रू उधर ट्रांसफर करेंगे तो सबूत मौजूद होगा। वो भी ये नहीं खाली ना तेरी मत बच जाती। बड़े नोट खत्म करने की बात की जाती है, वो कैश ट्रांजैक्शन कम हो, ताकि बड़ा नोट है ना, 2-4 गड्डियां हो, जब वही नोट जो है वो 1 रुपए का कर दिया जाएगा, 5 रुपए या 100 रुपए कर दिया जाएगा, तो आप गधा गाड़ी पे लाद के करेंसी नोट लेके जाएंगे कुछ चीज लेने के लिए, वो नामुमकिन हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी कि आप क्रेडिट कार्ड के जरिए या बैंक के जरिए आप जो है वो लेन देन करें। जब आप इस तरीके से लेन देन करेंगे तो जाहिर है वो डॉक्यूमेंटाइज हो जाएगा, वो किसी उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। समझ आई हो कौन कटिए डांगा। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक वक्त में सारे नहीं सो रहे होते, एक घोड़ा पैरा दे रहा होता है। अच्छा जी, पता नहीं किस चीज के लुटने का डर है घोड़ों को। सर ये खड़ा खड़ा ही सोया रहता है तो इसके तो अब्बे को पता ही नहीं चलता होगा कि ये सो रहा है या पढ़ रहा है। बेटा ये कैसे आज आप क्लास में बैठे हुए हैं बगैर यूनिफॉर्म के? अजीब सा लग रहा है। मैं आप लोगों की वजह से आज खुद आप वाला ब्लेजर, ये रेड ब्लेजर पहन के आया था, लेकिन आज आपने उतार दिए। सर हमने आपके लिए उतारा है कि कहीं आप भी हमारे साथ स्टूडेंट ही ना लगने शुरू हो जाए। कोई स्कूल की चेकिंग के लिए आए तो वो मास्टर ही ढूंढता फिरे। बेटा हर शख्स सारी जिंदगी एक स्टूडेंट ही रहता है। वाह वाह वाह, तो इधर आ जाओ फिर उथे की खजल होंडे। मैं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन उधर बैठ के फीस देनी पड़ेगी मुझे। सर आ जाओ, साडी फीस नाल ते स्कूल चलन नहीं दे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज फिर ज़ूलॉजी की क्लास जी, और आज हम एक इंतहाई दिलचस्प मौजू पे बात करेंगे, घोड़ों के बारे में। वाह 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 सर, वैसे आपको जानवरों में बड़ी दिलचस्पी है। हर इंसान को बुनियादी तौर पे जानवरों में दिलचस्पी होती है। हाय हाय हाय, वाह वाह, क्योंकि इंसान खुद बुनियादी तौर पे एक जानवर है। हाय 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 जी, हमें तो इन्ना गौरी दियां हरकतां बनमानस नाल मिल दियां। हाँ तुम तो बड़ा हंस की तरह चलते हो। यार मैं सोशल एनिमल होने की बात कर रहा हूँ। गुड गुड सर। अच्छा, घोड़े के बारे में सबसे दिलचस्प फैक्ट ये है कि घोड़े का दिल इंसान से बड़ा और दिमाग इंसान से छोटा, बल्कि बहुत ही छोटा होता है। अच्छा जी, सबसे दिलचस्प चीज तो घोड़े की ये है कि घोड़ा जो है ना जी वो खड़ा खड़ा ही सोता है। हाँ, घोड़ा खड़ा खड़ा भी सोता है और लेट के भी सोता है, लेकिन इनकी खूबी ये है कि जब बहुत सारे घोड़े सो रहे होते हैं, एक वक्त में सारे नहीं सो रहे होते, एक घोड़ा पैरा दे रहा होता है। अच्छा जी, पता नहीं किस चीज के लुटने का डर है घोड़ों को। सर ये खड़ा खड़ा ही सोया रहता है तो इसके तो अब्बे को पता ही नहीं चलता होगा कि ये सो रहा है या पढ़ रहा है। सर ये घोड़ा क्यों जागता रहता है? उसको क्या डर है? उसकी कड़ी जेब कटी जड़ी। अच्छा सर, घोड़े में एक फॉल्ट भी है, वो दुलत्ती मारता है सर। यार उसके पास होती दलतिया और क्या चपेड़े मारे वो। अच्छा ये फॉल्ट नहीं है, ये बल्कि एक तरह से घोड़े की खूबी है। घोड़ा अपने चारों तरफ, बल्कि कहना चाहिए 8 तरफ देख सकता है। 360 के जाविये पे घोड़े की आंखें काम करती हैं। बिल्कुल 2 या 3 मामूली से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर घोड़ा नहीं देख सकता। एक अपने मुंह के बिल्कुल नीचे, सर के बिल्कुल नीचे अंदर की तरफ, और एक बिल्कुल अपनी बैक पे, एग्जैक्टली अपनी बैक पे। तो जब आप घोड़े को अप्रोच पीछे तो घोड़ा घबरा के दुलत्ती मारता है। अच्छा सर, ये घोड़ी भी चारों तरफ देखती है? कोर्स। हाय हाय, उसका खामन तो मोबाइल ही नहीं इस्तेमाल कर सकता है। यार खुदा का वास्ता है, सर की बात सुनो, मेरे कैरियर का मसला है यार। वो देखो घोड़ों में कितनी दिलचस्पी है उसको। कई घोड़ों को जाके करकरा करना। अच्छा, घोड़े और घोड़ी की आपने बात की है, तो घोड़े और घोड़ी में एक फर्क ये भी होता है कि घोड़े के 40 दांत होते हैं, घोड़ी के 36 दांत होते हैं। सर घोड़े को 4 इसलिए ज्यादा लगाए होते हैं कि उसकी बीवी 2-3 दांत तोड़ भी देती है ना। Who knows better than you? सर मेरा नाम घोड़ा नहीं अजीजी है।
am not horse या horsey. सर जी ये सुना है कि घोड़ों को रंगों में तमीज नहीं होती। चल खैर यार उन्हें किहड़ा दुपट्टे रंगने होंदे। ये सदियों तक इंसान का घोड़े के बारे में ख्याल था कि घोड़ा कलर ब्लाइंड होता है। अब जाके कहीं पता चला है कि घोड़ा ना सिर्फ कलर ब्लाइंड नहीं होता बल्कि वो सब्ज और पीले रंग में इंसान से ज्यादा तेजी के साथ तमीज कर सकता है। हाँ जी, ये उस वक्त पता चला जी जब किसी स्टेशनरी की दुकान वाले ने बताया कि कल मेरे को घोड़ा रंग वाली पेंसिल लेना आया। सर जी घोड़े की मैक्सिमम कितनी रफ्तार होती है? यार होवे ना तो तू नहीं होते ते बह सकता। आज तक घोड़े की ज्यादा से ज्यादा जो रिकॉर्डेड स्पीड है वो 88 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। 88 किलोमीटर। लेकिन जनरली घोड़ा जो है वो 44 से 46 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इतना ज्यादा नहीं दौड़ता, इसीलिए तो ऊपर पे नहीं डाला किसी ने। सर 88 मील से ऊपर नहीं जाता घोड़ा सर जी? नहीं सर। तो फिर घोड़ा रहने दे, बंदा मजदा ही ले ले फिर। लेकिन भाई वो मजदा तो नहीं आता जो घोड़े पे बैठ के आता है। अभी आप घोड़े के कलर ब्लाइंड होने के बारे में पूछ रहे थे। जी। घोड़ा अंधेरे में इंसान से ज्यादा अच्छा देख सकता है। अरे वाह, इसीलिए बिल्ली घोड़ों के अस्तबल में नहीं जाती। उसे पता है मैं भी नेरे च वेख लैनी है ते भी नेरे च वेख लैंदा ते बिल्ली नु बिल्ली लड़े ते विस किन्नू चढ़े। अच्छा घोड़ों के बारे में एक बहुत दिलचस्प फैक्ट बताता हूं आपको कि घोड़ा अपने कानों को 180 के जाविये तक घुमा सकता है। जिधर उसको शक होता है ना कि बात हो रही है वो उधर कान मोड़ लेता है अपने, इसलिए उसकी कुव्वत समात बहुत अच्छी होती है घोड़े। ओ इसलिए मैंने देखा घोड़े का कान ऐसे ऐसे कर रहा होता है। यार तुम किधर किधर देखते रहते हैं, तुम अपने काम क्यों नहीं करते? अब भाई मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि हीरो अपने डायलॉग बोल रहा था और घोड़े का कान ऐसे ऐसे कर रहा था। अच्छा सर जी ये जो हीरो जिस घोड़े पे फिल्म में आता है वो घोड़ा बाद में दूसरे घोड़े को कहता है कि राती भरा दी फिल्म देखी जे। बताएं जी, आपसे कहा था घोड़े ने किसी ने? मुझे सर पूछ रहे आप नहीं सर, वो घोड़ों की बात कर रहे हैं, हीरो की नहीं। सर हीरो से याद आया, मैं ब्राउन घोड़े पे अच्छा लगूंगा या काले घोड़े पे? यार तुम घोड़े का रंग छोड़ो, तुम ये दुआ करो कि घोड़ा राजी होना चाहिए। और ये बात तुम्हें हीरो से क्यों याद आई है यार? अच्छा जी अभी हम घोड़े की रफ्तार, घोड़े के पास एक बहुत बड़ा स्किल जो है जो उसे कुदरत ने अता की है वो लॉन्ग जंप का है। आज तक सबसे जो तवील लॉन्ग जंप है यानी पानी के ऊपर वो एक घोड़े का रिकॉर्ड किया गया है जो वो 27.5 फुट है। तो सर इसे हम ओलंपिक गेम्स में क्यों नहीं भेजते? प्लेयर से अच्छा खेल सकता है। और हाई जंप जो रिकॉर्ड किया गया किसी घोड़े का वो 8 फुट ऊंचाई तक है। बहुत अच्छा। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात का ख्याल रखिए, जब आप किसी अस्तबल में जाते हैं जी तो जिस घोड़े की दुम पे सुर्ख रिबन बंधा होगा ना जी उससे 100 फुट दूर रहना क्योंकि वो दुलत्ती मारने वाला घोड़ा होगा। गुड इन्फॉर्मेशन। ये बताइए आप लोगों में से घुड़सवारी किस किस ने की हुई है? सर अच्छा आपने? जी सर मैंने कई फिल्मों में भी और कई ड्रामों में भी घुड़सवारी की हुई है। सर गोगे ने एक बार घुड़सवारी की थी जब इसकी बारात गई थी। अच्छा जी ये ब्याह वाले घोड़े पे बैठा था जी। अच्छा मगर वलीमे वाले दिन फिर घोड़े दे लक च पीड़ निकल आई सी। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये भाई साहब हैं, किसी की मुर्गी है जाहिर है अपनी नहीं पकड़ सकता वो। ये कोशिश की है और ये ऐसे बंदे की खबर आती है ना मुर्गी चोरी करते हुए जान बहाक। अच्छा भाईजान वो हमारा तस्वीरों और वीडियो वाला जो सेगमेंट होता है उसमें सबसे पहले आज मैं गिनीज बुक दिखा रहा हूँ आपको, उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार नहीं बनाया गया बल्कि ये जो रेगुलर बेसिस पे फरोख्त होने वाला पिज़्ज़ा है सबसे बड़ा, तो ये मून टावर पिज़्ज़ा बार जो है वो बेचते हैं इसको। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 21 फुट और 48 इंच यानी इस तरह वो चौड़ा है और 21 फुट लंबा है, यानी 4 फुट चौड़ा और 21 फुट लंबा है।
अच्छा, वो जो तुम कहा करते हो कि देसी मुर्गा पकड़ना नामुमकिन होता है जी, इसकी एक देसी होने की पहचान ये भी है जी। आजकल कमों में हर घर में बच्चों के मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से कोई ना कोई झगड़ा चल रहा होता है और बच्चों ने भी नित नई टेक्निक्स इस्तेमाल कर ली। ये देखें, एक वीडियो है जिससे पता चलता है कि जो फनकार है वो भी किस मतलब बाज़ औक़ात जो है वो अपने ज़ाती एहसासात जब फन पेश कर रहा होता है वो गालिब आ जाते हैं, तो कैसे उसका इजहार। ये था आज का हस्बे हाल और आज की हिकमत की बात ये कि जो औरत 1 मिनट में आपकी बात सुन ले वो आपकी माँ, जो 5 मिनट में सुन ले वो आपकी बहन, जो 10 मिनट में आपकी बात सुने वो आपकी बेटी, और जो बार बार कहने के बावजूद ना सुने वो बहरी। जो आप समझे या गलत वो भी नहीं। खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।